and thank you to the newcomer Sunrise group for allowing me to share. I am Willie. My name is Willie, and I am an alcoholic. Hi, Willie ji. Entirely by the grace of God and this wonderful fellowship of Alcoholics Anonymous, I am away from the first drink. I am very, very grateful to the God of my understanding, my sponsor in recovery through the 12 steps, and my sponsor for the traditions in service too. So, you see, I am now in Bhimtal in Uttarakhand, but for 68 years of my life, I stayed in Ahmedabad. I grew up there. I was born in Goa, but my mother settled down in Ahmedabad. She got married in Ahmedabad, and so I was settled down in Ahmedabad. I grew in Ahmedabad. I come from a broken family. My father left us when I was 4 years old. My sister was 1 year old, and my mother brought us up. In the meantime, there were a lot of parties, where my mother used to attend, and there were many, instances where drinking was, you know, served. And at one party, I do remember at a very early age, maybe about 5 or 6 years, or maybe 7 years, I don't really remember. I kept sipping from everybody's glass, and my mother realized that I had gone, you know, topsy turvy. I was, biting everybody's shoes. And she realized that I drank from everybody and it must have hit me. That probably was my first, you know, blackout. She gave me some nimbu pani and something or whatever, and she made me, vomit out. And but after that, there was no drinking at all. So, I used to be a church goer, and I did have a lot of faith in the church. I, in fact, in my adolescent period, I wanted to become a priest. But there were some instance that happened. I used to be singing in the choir in the church, and the people in the choir, the main person used to say, Willie, you've got a wonderful voice. You will one day make it very big with your voice. Now that, gave me some applause, and, I really felt great about it. But there was the other side of my fear, the fear of what will happen to me because I didn't have a father in the school. I feel inferior to other people, and people used to ridicule me sometimes, the classmates, because I didn't have my father to come to the parents' meeting. So these are the things that got me into fear. But to show off that fear, to get away from that fear, I used to show off with my strength, with my fist. And I used to have a lot of quarrels and a lot of jagdas with my classmates and with many people. Sometimes I used to be beaten, sometimes I used to beat the other person. But I used to show off to my friends that how uh, how strengthful I am, how I can think of things like going to a departmental store and getting a tennis ball or getting a book or getting a toy without paying. I used to be a fantastic shoplifter. Now, these are the things, I later on went up into singing, and, at that time in 1960s, 1960s, 1970s, they were the flower power time, and I was doing good in a big band, and I had long hair, and I had this guru shirt, and I was going to the Sunday morning church, and the father, the parish priest called me. He says, he had respect because I used to sing and I used to take a lot of part, and I wanted to become a priest.
He called me. He said, Willie, good morning. And I said, good morning. He said, Willie, you're going to the church? I said, yes, Father. Is there anything wrong? Is there anything that you want me to do? He said, no, only thing is that, the way you have dressed, normally people don't come like that to church. I got really infuriated. I got agitated. And I told him, I said, Father, what is wrong in what I've worn? I said, you remove your cassock, what the priests wear, and you come behind me and see how people are looking at each other, and see how after the church how they talk about it. Look at that person, what she had worn, what lipstick that worn, things like that. So I used to see the shortcomings of people. I used to observe people and think that I am something better than them. And I told the father, I said, Father, you come onto the pulpit and you give a sermon that, people are welcome. Even if they don't have anything, they're welcome to the church. And I said, is there that if I wear a 5-piece suit, will the God Almighty come down and give me a special blessing? He was dumbfounded. And I said, Father, from now onwards, I am going back from here, never to return to the church again. And so I did. My principles in life were not, it was zero. And then when I, touched alcohol, all my fears went away. I could meet whoever I wanted to. I could talk whatever I wanted to. And I used to talk hi-fi. I had to talk something out of my mind also. Such was my thinking. And then I got in love with a girl. She is not from my own community, and it took 8.5 years for her to convince her whole community and her family to get married to me. I had to prove myself. I had not finished my college because I was a misfit there, though I was a good, sportsman of recognition in my school, in the college, and on the college on those basis, and I was good in the Shakespeare dramatics and many things, but except for all those things, no studies. I used to be running around here with girls in parties and and I was a party animal. I did not pass beyond my pre-university विली and जी, had to leave college. some members are requesting अगर आप हिंदी में कर सकें तो, Yes. if comfortable. जी जी जरूर Thank you. जरूर जरूर। तो मैं मेरे कॉलेज के अंदर फिर जो है वहां से मैं निकला एंड मेरे मेरे जो जिसके साथ लव में था उसको प्रूव करना था। नाउ द ओनली क्राइटेरिया जो उनके पेरेंट्स ने, उनका फादर खास करके बोलते थे उनको कि भाई इफ यू आपको आपको किसी के साथ भी शादी करना है, हमें कोई इतराज नहीं है। उन्होंने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सब ऐसे व्यक्ति को खड़े किए सो दैट शी कुड मेक अप हर माइंड, बट डोंट गेट मैरिड टू दिस पर्सन, ही इज अ गोअन। ये गोवा में इनकी इनकी बचपनी इनकी इनकी जन्म हुई है। ही इज अ कैथलिक। उन लोग पीते हैं और दंगे करते हैं और फैमिली नष्ट हो जाते हैं। तो मेरा जो वाइफ अभी है, उन्होंने उनका पेरेंट्स को बोला यार कि यार विली ऐसा नहीं है, हालत में पीते हैं लेकिन इज अ सोबर ड्रिंकर, उसमें कोई जात का ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। लिटिल डिड शी नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन लेटर ऑन इन हर लाइफ एज वेल एज माय लाइफ। हम नहीं जानते थे। हमारी शादी धूमधाम से हुई और आई आई गॉट अ जॉब विथ अ वेरी गुड कंपनी। मेरे वहां जा जिस जिस पोस्ट में मैं होल्ड करता था वो कंपनी के अंदर, वो कंपनी के अंदर 18 ब्रांच के अंदर जो थे वो सभी सब इंजीनियर्स थे। आई वाज द ओनली नॉन इंजीनियर, नॉन ग्रेजुएट। लेकिन मैं टेक्निकल साइड पे इतना
होशियार विद प्रैक्टिकल नॉलेज से करा हुआ था। मैं आज की तारीख में भी मैं प्लम्बिंग का जॉब भी कर सकता हूँ, वायरिंग का जॉब भी कर सकता हूँ, इंजन का काम थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, मेरे जो मोटरसाइकिल थे वो कर सकता था, कर सब कुछ many things. Like people call me a man Friday, and I can attend to all jobs in my own, पेंटिंग कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये सब बड़ापन के साथ मेरे को जो मैं बड़ा हुआ एंड विद द एजुटेशन, मेरे पास कोई प्रिंसिपल्स मेरे लाइफ में रहे नहीं थे। आई वाज जस्ट लिविंग टू एंजॉय लाइफ, गोइंग टू पार्टीज एंड डूइंग दीज थिंग्स। यार मेरे जो जॉब में 26 साल आई आई वेंट टू यू नो जूनियर मैनेजर तक गया। एट द एज 26 साल की उम्र में हमने लोन लेके हमने खुद का घर बनवाया एट अ वेरी गुड प्लेस इन अहमदाबाद। द ड्राइव इन एरिया बोलते हैं, ड्राइव इन थिएटर मेरे घर के पास में थी। और ये सब कुछ जो है मेरे पीपल यूज टू कम टू माय हाउस टू ड्रिंक। बोले विली के वहां मजा आती है, इट यूज टू लिटरली बी अ क्लब इन माय हाउस। एंड मेरे वाइफ मेरे को आस्ते से बता रही थी, बोले कि यार ये डोंट यू थिंक ये जास्ती हो रही है? ऐसे नहीं नहीं यार, मेरे अपने घर में दोस्तों आते हैं या क्या। लेकिन एज टाइम पास इट इंक्रीज्ड। मेरे मदर इन लॉ ने मेरे को बोला कि देखिए यार, दीज आर ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स। आप उनको बोल देना कि यार जस्ट टेल देम कि भाई स्टॉप ड्रिंकिंग, और मैंने कम कर दिया, मेरे खुद के लिए मैं रहता हूँ। एंड आई ट्राइड दैट, एंड द पीपल दोस फ्रेंड्स they stopped coming to my house. लेकिन मैं जो 5 ड्रिंक 6 ड्रिंक पे पहुंच गया था, मैं उतार नहीं सकता था। आई कुड नॉट ब्रिंग इट डाउन टू 3 ड्रिंक्स और 2 ड्रिंक्स। आई वॉज डिसऑनेस्ट टू माई सेल्फ एंड टू एवरीबडी। मेरे जो पहली तारीख को मैं जो पगार लेके मेरे वाइफ के हाथ में देता था, वो मैं आई स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग दैट। मेरे जो बोनस आता था वो मैनिपुलेट कर देता था। Everything, almost more than half of my salary used to go in my drinks. क्या कहाँ मैं छुपाने का रखता था, क्या करना, ये सब कुछ हरकतें मेरे। there was no, मैं जब बिल की कहानी सुनता हूँ, तो there was no infidelity to my wife. She had done everything. तो मेरी जो पीने का दौरा जो है, इट वेंट अप एंड अप एंड अप एंड अप, many times, she has said lies to many people because of my drinking. जो सोसाइटी में मैं 72 फ्लैट के अंदर में आई हैव बीन अ चेयरमैन, आई बीन अ सेक्रेटरी, लेकिन वो सब दिखावा था यार। यू नो आई वाज नॉट फिट टू बी अ चेयरमैन और सेक्रेटरी। लेकिन मेरे पीने के हिसाब से, मेरे को बड़ापन के हिसाब से, आई वांटेड टू शो ऑफ। आई कुड नॉट होल्ड दैट पोजीशन, एंड आई वाज ashamed of what I was doing. There was remorse, there was guilt, there was fear, and there was hopelessness. As time passed, मेरे मेरे जॉब के अंदर, I used to get 30 days privilege leave, 9 days gradual leave, 15 days sick leave, and 22 days festive leave. आप गिन सकते हो तो there was hardly about 160, 170 days, Saturday half day, Sunday full day. तो गिन लो या कि कितने दिन मुझे काम करने का था। लेकिन I used to take leave without pay for many a days. और मेरी responsibility, मेरी जो principles towards where I was working was nil. The principles towards where I was staying was nil. The principles towards my friends was nil. The principles towards my wife and हमारा इकलौता बेटा है was nil. हमारा जो बेटा है, he was born with a heart, a 1.5 centimeter hole in his heart. और उसका 15 महीने का था तभी उनका ओपन हार्ट सर्जरी की थी हम लोग ने चेन्नई में। दैट वाज फर्स्ट टाइम अपोलो हॉस्पिटल वहां बॉर्न हुआ था, और वहां पे उनकी डॉक्टर गिरिनाथ के पास में उनकी ऑपरेशन की थी। एंड मैं आई ऑपरेशन किया, सक्सेसफुल किया। मैं जाके आई जस्ट ब्रॉट अ बॉटल मेरे एंड टू द हॉस्पिटल। मेरे वाइफ बोले ये क्या कर रहे हैं? मैंने बोला आई एम सेलिब्रेटिंग ये, ये the operation has gone successful. He said, yeah, are you gone crazy? बोले ये हॉस्पिटल है। I said, so what यार?
So these are the things. I had no principles of any sort towards a normal life कि ये normal आदमी कर सकते हैं. मैं तो I was abnormal. ये जो है मुझे जब मैं I lost my job of 26 years. I lost prestige, I lost power, I lost money, I lost everything. जो बनाया था मैंने either मैंने बेच दिया था या तोड़ दिया था, रिश्ते तोड़ दिए थे. I जैसे ना बिल डब्ल्यू बोलता है, I was a lone wolf. Quicksand when I came around me, दलदल सब तरफ हो गए थे. दोस्तों दूर हो गए थे, रिश्तेदार कोई पास में नहीं आ रहा था. मेरा लड़का जो है 21 साल का हो गया. आई वॉज अ स्पोर्ट्समैन. उनको स्पोर्ट्समैन में मैंने उनको एंटर किया था, लेकिन यू नो he did not he was the champion, speed skate champion of India for 4 years, और इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, लेकिन वो मुझे उनके स्केटिंग रिंग के पास में भी आने नहीं देते थे. उनके मदर मेरे वाइफ को बोलते थे कि यदि डाडा आता है तो मैं उनका शक्ल देखूंगा तो मैं दौड़ते दौड़ते वहीं रुक जाऊंगा. दिस वाज द चैलेंज, एंड दिस हैपेंड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. वो 6.5 साल के था तभी उन्होंने फर्स्ट स्पर्धा अहमदाबाद में नॉन स्टॉप स्कीटिंग 18 आवर्स का किए थे. तो उनको मैंने बोला कि आप एक एक मेडल लेके आओगे, एक कप ले आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. लेकिन वो 6.5 साल के उम्र में मुझे बोला कि डैड मैं आपके लिए कुछ भी करने तैयार हूँ, सिर्फ आप ये जो पी रहे हो इसको कम कर सकते हो या टोटली बंद कर सकते हो, तो ये हमें एक एक वचन दीजिएगा. एंड आई डिड, बट आई कुड नॉट कीप अप टू दैट प्रॉमिस राइट टिल ही वाज 21 years of age. खैर मैंने सब कुछ खो चुका मेरे जीवन के अंदर. मेरे वाइफ ने है ना नौकरी ली एट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन अहमदाबाद, और थोड़े ही दिन में मुझे बताया, उन्होंने बोला कि विली ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, आप आइए. मैंने साइकेट्रिस्ट के साथ बात कर लिया, लेकिन यू कम एंड स्पीक टू हिम. मैंने बोला नहीं यार मैं नहीं आऊंगा, आप तो जानते हो मैं क्या कर रहा हूँ. मैंने आपको कई बार मार दिया, ये 5 अंगली मैंने छाप दिए, आपके चश्मे तोड़ दिए, मैंने घर में ही इतना दंगे किए है ना. रात को मैं 2-2 ढाई-ढाई 3-3 घंटे तक जोर जोर से मैंने नींद के अंदर किसी को नींद में मैं बाधा डालता था उनके लिए, क्योंकि मैं जोर जोर से चिल्लाता था. आई डोंट नो व्हाट वो दैट आई केम टू नो लेटर ऑन वाज ट्रेमेंस, डेलिरियम ट्रेमेंस या हेलुसिनेशंस या व्हाटएवर यू कॉल इट. और ये हालत के अंदर जो है मैं माय ड्रिंकिंग हैड गॉन. मैं पीता था जीने के लिए और जीता था पीने के लिए यार. मेरे जो चॉइस थे स्कॉच विस्की और सब कुछ, और अच्छे अच्छे क्लब में और अच्छे खाने के, और सब कुछ चले गया था. आई वॉज जस्ट ड्रिंकिंग देसी, दैट टू नीट. और मैं 45 डिग्री अहमदाबाद के अंदर मेरे टेरेस राइट था, और वहां पे हमने एस्बेस्टोस शीट का ऊपर डाल दिया था पौधे पौधे ग्रो करने के लिए. और वो एस्बेस्टोस शीट के ऊपर मैं कई जगह में मैंने बोतल छुपा के रखता था यार, सोफा सेट के अंदर है ना, स्लॉट मार के स्पीकर के अंदर है ना, गैस के सिलेंडर के पीछे, बाथरूम के वेरियस थी, डोरी बांध के मैंने खिड़की के नीचे से भले सोसाइटी वाले देखे लेकिन घर वाले के हाथ में नहीं आना चाहिए. ये सब दौरे के अंदर जो है मैं जब मेरे वाइफ ने बोला, आई टोल्ड दैट, आई सेड आई एम नॉट कमिंग टू द साइकियाट्रिस्ट. देयर वाज ओनली वन रीजन इज दैट आई वाज नॉट ऑनेस्ट टू माई सेल्फ. और यदि वो डॉक्टर मुझे पूछता कि आप कितना पीते, कहाँ पीते, तो मैं क्या बताने वाला हूँ. ही इज एन आउटसाइडर, और कौन मुझे समझेगा. लेकिन God has his own way for everybody. He has in his own sweet time. 20, I think on the 20th of May or 21st of May 2005, एक छोटा सा आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, किक दैट बॉटल.
वो आर्टिकल को काट के मैंने अभी भी चिपका के, आई मेड माय ओन आर्काइव्स ऑफ माय रिकवरी, और मैंने उसमें चिपका के रखा है। मैंने वाइफ, मैंने जस्ट बिफोर गोइंग टू द हॉस्पिटल, उन्होंने बोला कि यार ये पढ़िए, मैं आऊं उसके पहले। और मैं राह देखता था कि ये निकल जाए, घर में कोई नहीं हो जाए, तो आई विल स्टार्ट ड्रिंकिंग, और मैं पीने का शुरू कर दिया था यार। आई माय मेरे हालत ऐसा हो गया था, आई कुड नॉट गेट अप फ्रॉम द बेड एवरी मॉर्निंग। मेरे को तकिया नीचे गिरा के, तकिया के ऊपर मेरा बॉडी को गिरा के टॉयलेट में जाके फिर मेरे को ड्रिंक, जैसे दो तीन तीन शिप मिल जाता था, आई टू बी ओके। और मैं दोपहर का टाइम हुआ, मैंने बोला यार मेरा वाइफ ने ये बोला है तो यार पढ़ लेना, तो मेरे, बिकॉज वो शी वाज द कैप्टन ऑफ द हाउस, मैंने बोला शाम को आके मेरा बैंड बजा देगी। और मैंने उठा के मुझे फॉर्चुनेटली मिला, और उसके अंदर जो हेल्पलाइन नंबर था, और जिस शब्द से मुझे परेशानी थी, मेरे पीठ के पीछे सोसाइटी के अंदर लोग और बच्चे और मेरे दोस्तों, मेरे रिश्तेदार, मेरे वाइफ एंड मेरे सन, सब मुझे जो बोलते थे कि आप शराबी बन गए, यार होपलेस पर्सन, नथिंग कैन बी डन अबाउट यू। और वही शब्द मैंने हेल्पलाइन नंबर डायल करके बोला, मैं एक शराबी हूँ, आपके पास कोई समाधान है? डू यू हैव अ वे आउट? डू यू हैव अ सॉल्यूशन? और सामने वाला जो है, उन्होंने बोला कि यस, हम भी आपके जैसे, आप यहाँ मीटिंग में आ सकते हो। आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट एल्कोहलिक्स एनोनिमस, और मैं ताजुब हो गया कि ये कैसे बोल सकते हैं कि यार मैं आपके जैसा हूँ, वो कैसे मेरे जैसे हो सकता है। थॉट आई वाज द ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु इज लाइक दिस, एंड देयर इज नो होप फॉर मी। लेकिन वो मीटिंग में मैं गया, 125 किलोमीटर अवे फ्रॉम अहमदाबाद। अहमदाबाद में कोई मीटिंग नहीं था, बड़ौदा गया था। और मैं वहां गया, और पहला मीटिंग में मैं वहाँ करीबन 20-25 मिनट पहला संडे मीटिंग में गया, दैट वाज 23 मई 2005। और इन्होंने मुझे गले लगा, मुझे हैंडशेक किया, और मुझे ताजुब हुआ कि यार इतना टाइम तक मुझे किसी ने हैंडशेक तक भी नहीं किया। मेरा वाइफ वाज स्कैर्ड कि मुझे एचआईवी या एड्स हो गया है, क्योंकि मेरी हालत ऐसा हो गया था। आई वाज 35 किलोज इन वेट, आई वाज जस्ट लुकिंग लाइक अ बेगर। मैं एक भिखारी जैसा हो गया था यार। आई हैड लॉस्ट एवरीथिंग इन लाइफ वर्थ वाइल। यार वो मीटिंग के अंदर मैं बहुत गौर से सुन रहा था। उन्होंने है ना सेरेनिटी प्रेयर से शुरू किया, एंड आई सॉ पीपल क्लोजिंग देयर आईज, आई सॉ पीपल पुटिंग देयर हैंड्स टुगेदर। और मुझे शर्म लगती थी यार, मैंने बोला ये तो मैं नहीं करूंगा यार, हाउ कैन आई डू दिस, दिस इज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। लेकिन उसके बाद जो प्रियम्बल पढ़े, और प्रियम्बल में जो लिखा है ना, the only requirement for membership is a desire to stop drinking. There are no dues, no fees. We are not allied with any sect, denomination, politics, organization. यार मैंने बोला आई थिंक दिस इज द राइट प्लेस। और फिर उसके बाद हाउ इट वर्क्स, 12 स्टेप्स, 12 ट्रेडिशंस, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, ये पढ़े। प्रोमिसेस एट द एंड ऑफ द मीटिंग पढ़े। एंड उसके बीच में जो शेयरिंग्स हुए, देयर वर अबाउट 15-16 पीपल। और मैंने पहले तो मुझे डाउट गया कि यार मेरा वाइफ ने इनको बोल दिया कि मैं, लेकिन ऑल ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेस, देयर फैमिली, देयर प्लेसेस वर डिफरेंट। उन किसी ने मेरे से जास्ती पिया, मेरे से कम पिया, मेरे साथ बराबर में पिया। somebody had lost his leg, somebody had lost his family, somebody, किसी का बिजनेस चले गया। मैंने बोला हाँ, मेरा मेरा नौकरी चली गई डेफिनेटली, बट आई हैव माय लेग्स एंड माय हैंड्स। और मैं वहां पे ही तय कर किया कि यार ये मेरे जैसे है यार। मैं यहाँ अब बोलने वाला हूँ नहीं कि मेरे दूसरे खेत का मूली हूँ, और इनको बता दूंगा कि कैसा पीना है। आई सरेंडर्ड। और वहां से जब बस में मैं लौट रहा था अहमदाबाद, कुछ ब्लैंक हो गया। आई वाज लुकिंग आउटसाइड द विंडो, एंड कुछ ब्लैंक हो गया, एंड देयर वाज समथिंग दैट poured ओवर मी, एंड दैट ऑब्सेशन टू ड्रिंक वाज लिफ्टेड अप ऑन दैट फर्स्ट मीटिंग। हाँ, मैं भूल गया कि ये मीटिंग होने के बाद दो जने ने मेरे कंधे पे
हाथ रखा और उन्होंने बोला कि विली, हाउ डू यू, ऐसा कि आई लव दिस मीटिंग एंड आई विल कीप कमिंग हियर। उन्होंने मेरे को बोला कि यार, डू यू बिलीव इन अ हायर पावर, डू यू बिलीव इन गॉड? मेरे को इतना चला, मेरे को वो चर्च का और वो पादरी का याद आया। मैंने बोला यार, डोंट टॉक अबाउट रिलीजन, डोंट टॉक अबाउट गॉड प्लीज। आई डू बिलीव इन मदर नेचर, मैंने बोला। हाँ, बोले वो बहुत हो गया, वट एवर यू चूज। यार, दिस आई फेल्ट was strange. They gave me, it was democracy for me in the place. और मैं वहां पे मीटिंग करते गया यार, एवरी वेनेसडे एंड एवरी संडे। 125 किलोमीटर्स मैं बोलता हूँ, बहुत आसानी से बोलता हूँ, लेकिन जब मैंने थोड़े टाइम के बाद गिनती किया कि मैं घर से निकलता हूँ और घर वापस आता हूँ, तो इट यूज्ड टू टेक मी अबाउट 8 to 10 hours, समटाइम 12 hours फॉर 1.5 hour मीटिंग। लेकिन वो जो ताकत मिलती थी मुझे, आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द प्रोग्राम। 2 महीने या 3 महीने हुए थे, तभी कुछ कॉन्फ्रेंस वहां पे सूरत में था, और विली, उन्होंने बोला कि विली, वहां पे अपने गुजराती बिग बुक का आज है ना, ये वहां पे अपने इसकी इनॉग्रेशन होगा, इनकी लॉन्च होगा, आप आओगे? मैंने बोला हाँ, लेकिन पैसे कम है। बोले कि हाँ, देख लीजिएगा, हो सकता है तो आ जाना। तो मैं चले गया वहां पे, मेरे वाइफ ने पैसे दिए तो गया था मैं वहाँ। और वहां पे मेरे हाथ से गुजराती बिग बुक का लॉन्च हुआ, मुझे थोड़ा शेयरिंग करने मिला, और वहां पे कोई व्यक्ति मुझे मिला, और उन्होंने पूरा लिटरेचर जो ए का है, द बिग बुक, 12 steps and 12 traditions, केम टू बिलीव, लिविंग सोबर, डेली रिफ्लेक्शंस, और सब कुछ जो है एज बिल सीज इट, और 44 पैम्पलेट्स। उस टाइम में 750 रुपीज का था, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। और वो बिग बुक आज दिन तक मैं है ना बहुत संभाल के, उसके अंदर बहुत सारे कलर्स लगे हुए। लेकिन दैट वाज द बिगिनिंग, जब मैंने आइडेंटिफिकेशन किया है या कि देर इज, कि भाई इन लोग 100 शराबी इतने इतने सालों पहले, मेरी कहानी कैसे लिखा है इसके अंदर। एंड आई रियली गॉट अटैच्ड टू द बिग बुक। आज मैं बोलता, या यदि कुछ चेंजेस मेरे में आया हुआ है और जिसका प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, कि ये जो 100 शराबी ने जो किया है, कि उन्होंने जो रिकवर किया, वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम अ सीमिंगली होपलेस स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। फर्स्ट फॉरवर्ड टू द फर्स्ट एडिशन के, टू शो अदर अल्कोहलिक्स प्रिसाइसली हाउ वी हैव रिकवर्ड इज द मेन पर्पस ऑफ दिस बुक। और आगे जब लिखते हैं कि यार, है ना, कि भाई फॉरवर्ड टू द सेकंड एडिशन के, भाई टू प्रूव दैट वन अल्कोहलिक कुड इफेक्ट अनदर as no non-alcoholic could. It also indicated that strenuous work one alcoholic with another was vital to permanent recovery. और मुझे वो चाहिए थी, कि ये परमानेंट रिकवरी, मुझे ये छुटकारा चाहिए थी। मैं आगे बढ़ते गए, और उन्होंने जब करीबन 3 महीने से कम हुए थे मेरे सोब्राइटी को, वन डे करते करते बहुत तकलीफ हुई थी यार, घंटी बज रही थी। और मेरे को मालूम है, मैंने पहले ही मीटिंग में उनको बोला था कि यार मुझे नींद कैसे नहीं आएगी यार, मेरे को शराब से ही नींद आती है। तो उन लोग ने, जिसने सुना, उन्होंने हंसे, बोले कि यार विली, आपने कभी टीवी में, कोई अखबार में, कोई मैगजीन में, कि पिक्चर में कुछ देखा है कि आदमी जो है ना नींद के बिना मर गया? मैंने बोला नहीं। बोले ट्राई करो यार, देखो कुछ मूवीज हो या कुछ बुक्स हो या कुछ हो, जो देखो कुछ इंटरेस्ट का हो तो करो। और मेरे को है ना थोड़े ही दिन में ऐसी नींद आने लगी कि यार, इवन टुडे आई कैन स्लीप एट एनी टाइम एंड गेट अप एट एनी टाइम, एंड आई कैन स्लीप लाइक अ स्मॉल बेबी विदाउट एनी वरीज। नाउ हाउ इज दैट पॉसिबल? जब 3 महीने हुआ, उन लोग ने, बड़ौदा वाले ने और सूरत वाले ने, सबने मिलके हमको ताकत देके यार अहमदाबाद का ग्रुप शुरू किए। So there were 60, 70 people who had come from all over, or all the way even from Mumbai. और मैंने बोला यार, इतने शराबियों के साथ इतने सारे आदमी लोग आते हैं। कोई लोग है ना, 3 दिन पहले आए थे, बोले कि चलो यार, टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ है, संदेश कहाँ है, न्यूज़पेपर और ये है कहाँ है, टीवी वाले कहाँ है, फ्लेक्स बैनर कहाँ बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। देयर वाज टोटल एक्टिविटी, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ दैट आई कैरीड टू अहेड।
यार वहां से मैं बोलता हूँ कि हम लोग ने जो अहमदाबाद का ग्रुप शुरू किया, हम लोग ने क्या संडे एंड थर्सडे का नक्की किया मीटिंग के लिए। लेकिन मुझे वो एक और मीटिंग चाहिए थी, तो बड़ौदा में 5.5 साल तक जाते रहे ऑन वेडनेसडे। और उसके बाद एक व्यक्ति मिला जो बोले कि चलो अपने सौराष्ट्र और कच्छ में अपने आगे मैसेज लेके जाते हैं। तो मैं बोला चलो, एंड दैट वाज 250 किलोमीटर्स। तो वी यूज्ड टू गो देयर टू राजकोट, पोरबंदर एंड जूनागढ़, जामनगर, भावनगर, मोरबी, वीरनगर, वीरपुर। तो बहुत सारे ट्रैवल किए हम लोग ने यार, टू एवरी वीक, एंड वी यूज्ड टू हैव मीटिंग इन बड़ौदा, इन राजकोट। उस व्यक्ति जिसके साथ हम लोग उतना ट्रैवल किया, उन्होंने क्लॉक किया था कि विली we have touched something like more than 5,000 alcoholics. लेकिन आज की तारीख के अंदर उस इलाके में there are only 3 recoveries. That is enough for us here. We have carried the message. We have done our part. It is in water over the dam. बोलते कि जिसको चाहिए वो करेगा, जिसको नहीं चाहिए वो छोड़ देगा. We are powerless. So this is what I went ahead with the program of recovery, and you know my life had not changed, my thinking had not changed. 3 महीने के बाद मेरे जो लड़का बहुत प्यारे से बोले कि अब पापा हमसे शराब से दूर है, चलो उनके साथ। he refused to eat lunch, dinner or breakfast on the same table that I was eating. कुछ हुआ होगा और वो मेरे पास आके बैठे टेबल के ऊपर और बातचीत करने लगा। आई फेल्ट गुड। और उन्होंने कुछ दूसरे ही स्टार्टेड आस्किंग मी सम क्वेश्चंस अबाउट और मैं वापिस उसको लेक्चरबाजी करने का चालू कर दिया, वापिस उसको कंट्रोलिंग करने का चालू कर दिया। और वो तुरंत उन्होंने प्लेट उठा के वहां जहाँ बैठते थे अलग से वहां जाके बैठ गया। मेरा वाइफ थी, उन्होंने देखा। और फॉर्चुनेटली मैं ए में आया तो मेरे वाइफ को मैंने बोला कि आई गिव हर द पासवर्ड। मैंने बोला यार मेरे से कोई भी अनजाने में गलती होए तो प्लीज टेल मी अलोन इन आवर बेडरूम, not in front of everybody. I did not want to be humiliated anymore. I wanted to get recovery at any cost, going to any length to get victory over alcohol. तो ये जो है मेरी वाइफ ने बाद में मैंने आस्ते से शाम को बताया, बोला वाइफ फ्लॉइड। मैंने बोला हाँ यार मेरे को जानना है ना, मुझे सुधारना था यार। आई वांटेड हिम टू कम बैक इनटू माय लाइफ, आई वांटेड एवरीबॉडी टू कम बैक इन माय लाइफ, whoever I had harmed, whoever I had मैंने जो हरकतें किसी के साथ कोई भी साथ किए थे। तो ये जो चीज जो है मेरे वाइफ ने बोला कि यार उन्होंने क्या बोला, बोले कि यार डैड शराब से दूर है बस, बाकी इज थिंकिंग, हिज वे ऑफ एक्शंस एंड एवरीथिंग इज द सेम। मैं तुरंत नेक्स्ट मीटिंग बड़ौदा में जाके बात किए, शेयर किया मेरे कॉन्फ्लिक्ट। ए के अंदर क्या है, आई शेयर माय कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देयर आर अदर पीपल हु हैव देयर एक्सपीरियंस गोइंग टू द सेम रोड, और उनके एक्सपीरियंस से बता सकते कि यार उन्होंने क्या किया ऐसे संजोगों में। एंड आई फाउंड पीपल हु पॉइंटेड आउट टू द टू गेट अ स्पॉन्सर एंड टू वर्क द 12 स्टेप्स। और मुझे वो क्वेश्चन एंड आंसर ऑन स्पॉन्सरशिप जो है वो पैम्पलेट पढ़ने के लिए बताया। मेरे पास था तो मैंने उठा के पढ़ लिया, एंड आई वाज रेडी एट स्टेप 3 and made a decision to turn my will and my life over to the care of God as I understood it. और मैं तैयार थी, आई वाज प्रेइंग फॉर अ स्पॉन्सर। और मेरा पहला ही लाइफ का पहला कन्वेंशन जो पटनी टॉप में थी 2007 नहीं 2006 में, 2006 में वहां पे थी। और है ना, मैं वहां पे गया और वहां पे there were 2 rooms, one was Bill room, one was Bob's room। और बिल रूम के अंदर जनरल शेयरिंग था। मैंने जनरल शेयरिंग के मुझे चांस मिल गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन दोपहर के टाइम पे मैंने जब प्रोग्राम देखा रहे, मैंने बोला यार ये स्टेप मीटिंग तो ऊपर हो रही है। तो एनीवे दे हैड डन द फर्स्ट 3 स्टेप्स और 4th 5th 6th
दोपहर को चालू किया, there were about 60-70 people. I sat down there and people were sharing on the fourth, fifth, sixth. और वो मीटिंग खत्म होने के बाद स्पीकर, वो पता नहीं यार, सी गॉड वर्क्स इन हिज ओन मिस्टीरियस वेज, और वो स्पीकर आके मेरे बाजू में बैठ गया और we introduced ourselves, we hugged each other, and I spoke to him. I'm looking out for a sponsor. I missed the first 3 steps, but this has been an eye opener. I am, so उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़ के, बहुत बारिश गिरा, हम लोग ऊपर से दौड़ते दौड़ते नीचे गए, and he introduced me to 2-3 people. Obviously that was the cue to pick up a sponsor from the 3 people that he introduced me. और मेरा एक जने के साथ attraction हो गया, and that he's a loving person. He took me to the big book. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चनर्स थे अबाउट द फोर्थ स्टेप इन्वेंटरी, बहुत सारे जने दिन दिए थे। मैं बहुत डरा हुआ था कि यार ये कैसे हो सकता है, इतने सारे क्वेश्चंस को मैं कैसे आंसर कर सकूंगा। लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने बोला उसको सबको बाजू में रखो, वी आर गोइंग टू गो एग्जैक्टली प्रिसाइसली एज व्हाट इज गिवन इन द बिग बुक। और उसके अंदर जो उदाहरण दिया है उसके हिसाब से, ही टुक मी वेरी स्वीटली टू द बिग बुक एंड ही टोल्ड मी हाउ टू मेक माय इन्वेंटरी। उनका खुद की बताया, उनकी खुद की अनुभव बताया, एंड आई वेंट थ्रू द स्टेप्स, एंड देन थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग इन माय लाइफ। मेरी जो नौकरी चली गई थी एट द एज ऑफ 52, I started a small business in housekeeping. After doing the housekeeping of my own self, in the fourth step, in the fifth step, then in the sixth and the seventh step, asking God and humbly asking Him to remove all my shortcomings, my defects of character, going into the eighth and ninth, making amends to all people. जितना हो सका, है ना, मेरे जो फाइनेंशियल जो मैंने जो कर्जा लिए थे फॉर ड्रिंकिंग, उसको मैनेज कर पाया। आई कुड slowly repay that 87,000 rupees to 3-4 people who had borrowed money. वो मेरा पायलट प्रोग्राम था इन मेकिंग अमेंड्स। और आस्ते आस्ते करते करते मैंने जिसको मैं मिलते गया उसके साथ, एंड देन घर के लोगों के साथ लिविंग अमेंड्स करने का। आई स्टिल डू माय लिविंग अमेंड्स विथ माय वाइफ। वही है जो हम 43 years पहले हम लोग ने शादी की थी। So my wife and myself, we are great travelers and we love traveling. We have gone, मैं जब बिल का कहानी सुना और जब वो मोटरसाइकिल पे पूरे उन्होंने ईस्ट अमेरिका कवर किया फॉर हिज न्यूयॉर्क स्टॉक ब्रोकिंग के लिए सब, तो मुझे यही याद आया कि यार मेरा वाइफ ने है ना काफी मोटरसाइकिल पे ट्रेवल किया ऑल द वे टू काठमांडू। वी हैव गॉन होल ऑफ साउथ इंडिया के बहुत सारे जगह हम लोग मोटरसाइकिल पे साथ में ही किए। एंड हमारा एक ड्रीम था कि यार है ना, वी विल समडे बी एबल टू मेक अ हाउस इन द हिल्स। और यही जो सपना है, मैं समझा कि यार वो सपना सब कुछ चकनाचूर हो गया बिकॉज ऑफ माय ड्रिंकिंग इन द हालत जो। लेकिन आस्ते आस्ते करते करते जो है ना, मॉनेटरली फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी विल लीव अस, जो प्रोमिसेस में लिया। लेकिन आई कैन नॉट आई कैन नॉट अलाउ माय फाइनेंशियल जो मुझे मेरे जो प्रोग्रेस हुआ टू प्रिसीड माय स्पिरिचुअल वेलबींग। मेरे को जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स मिले जो मेरे पास बिल्कुल शून्य हो गए थे बिफोर आई केम टू ए, और ए में जैसे आते आते ये जो प्रिंसिपल्स मेरे लाइफ में हाउ टू बी यूजफुल, ये जो पेज 52 के अंदर जो बिग बुक के अंदर जो दिया हुआ है, द बी डेवलपमेंट्स, मैं जो है ना 52 में खोल रहा हूँ कि we had to ask ourselves why we shouldn't apply to our human problem the same readiness to change our point of view. We were having trouble with personal relationships. अब ये पर्सनल रिलेशनशिप तो सबके साथ मेरे रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ था।
मैंने इन्हें पूरा दीवार खड़ा कर दिया था. We couldn't control our emotional natures. ये मेरे साथ जो है, मेरी इमोशनल नेचर्स जो है मेरे, आई कुड नॉट कंट्रोल इट एट ऑल. आई वॉज अ प्रे टू मिजरी एंड डिप्रेशन and I couldn't make a living. I had a feeling of uselessness. I was full of fear. I was unhappy, and I couldn't make real, help to other people. तो ये जो चीज जो है, मेरी जो अनमैनेजेबिलिटी, इनर अनमैनेजेबिलिटी जो है, where I was powerless over alcohol. अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास, there were a lot of things that I could manage. There are a lot of things that I can, मेरे जो passions थे, photography थे, music थे, and keeping everything in tidiness. और ये जो एक ड्रीम थी हमारी, वो ड्रीम केम ट्रू. मैंने, है ना, पैसे नहीं थे, पैसे मांगे मैंने, लेकिन पैसे मांगे so that I could carry this message. I have been given the opportunity to work in the tribal place of the Madhya Pradesh, Jabua district जो बोलते हैं, है ना, और वहां पे, और सौराष्ट्र. तो जब मेरे वाइफ और हम लोग ने, है ना, वी मेड अप आवर माइंड किया चलो हिल्स में अभी जा सकते हैं. एट द एज ऑफ 66 वी मेड अप आवर माइंड. एंड our son was amazed. बोले कि यार, at this age people come back, you are going. बोले हाँ, go. He was so satisfied with what, and he was convinced that, dad will be able to do whatever, is in him. He is a changed person. तो ये जो है, we made a decision and we came. वे 2016 में हम लोग ने यहाँ पे स्काउट किया, देखे, and I did some research के भाई वेदर कैसा है, रेनफॉल कितना है, सब कुछ चेक करके, पानी ये वो. एंड वी डिसाइडेड कि हम लोग भीमताल के पास में चाफी करके गांव है, छोटा गांव है, 500 लोग का. एंड पीपल आर वंडरिंग कि यार, माय मेन चॉइस when we wanted to go out, के भाई मैंने वाइफ को बोला कि अपने वायनाड जाते. इट इज एट द सेम हाइट एज भीमताल, बट द सेम, my criteria was कि भाई वहां पे AA का प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, and I need AA all the time. I need to be on the beam of AA. तो मेरे वाइफ को बोला, मैंने बोला यार वहां पे AA का है, how much AA is so close to me. तो बोले, you will be able to manage yourself. I have full confidence. चलो, मैंने बोला आपको ऐसा है तो मैं यहाँ पे आया. एंड देन, जिसके साथ हमने भरोसा रखा था घर बनाने के लिए, वो हमें रॉयल हिमालयन राइड पे ले जा रहा था और हमारे पैसे चकनाचूर हो रहा था. आई हैड टू रिमेन हियर फॉर मोर देन 1.5 years, कंटिन्यूअसली स्टेइंग अवे फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सब जो मैरिजेस, फेस्टिवल सीजन्स, ए meetings, physical meetings. लेकिन I had kept in touch with A members. It was time to give this message to others. So, I have got the opportunity of working with some people. You know, so reading the big book, reading the 12 and 12 with many people was the bright spot of the day, every day of my life, that I stayed here for more than 1.5 years. But the surprising part is that, my room, जो मेरे को रूम मिला था यहाँ पे चाफी गांव में, वो बार के ऊपर था. I was just 6 inches away from, the bar. लेकिन 1.5 साल, 2.25 साल मुझे, है ना, पलट के देखना भी नहीं पड़ा. हालत में शाम को जो है वहां पे आवाज जास्ती हो रहा था. मैंने बोला मेरे दोस्त वहां पे आए. जस्ट रिमेम्बर्ड बिल डब्ल्यू इन द मेफ्लावर होटल, when he went there, और जो बिजनेस के साथ वो चौपट हो गया था, और है ना, सामने उसको बार. So I said, if Bill can do it, और सब इतने सारे शराबियों ने कर सका है, and the program is, when I come to know that, alcohol is just a symbol. My problem laid somewhere else. My problem centered in my mind. If I can, work the 12 steps of recovery in all my affairs every day, every moment of the day, then I can be happy. I can be, joyful, and I can be free of many things that used to trouble me.
So alcohol does not become my problem at all. I just have to, work with another alcohol, strenuous work with another alcohol is the bright point. It's a vital part of my recovery. यार मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास नहीं तो सिद्धांत थे, नहीं पे मेरे पास मैं सब कुछ, आई टू टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड. नाउ आई कैन बी यूजफुल. आज मैं बोलता हूँ हम लोग ने यहाँ घर बनाया, आई एम सो जॉयफुल टू सी माय वाइफ. ये छोटा सा गार्डन है, उसमें हम लोग फ्लावर्स है, फ्रूटिंग ट्रीज है, बाजू में सब्जियां हमारे लिए हम उगा रहे हैं. एंड शी गोज एंड टॉक्स टू एवरी फ्लावर, फ्लावर के साथ जो है ना उसका फोटोग्राफ लेके उनके दोस्तों को भेजते हैं. एंड द स्माइल ऑन हर फेस एंड द prayer that she does in the garden is enough for me to carry the power of his will for me today. तो आज मैं बोलता हूँ कि यार, Alcoholics Anonymous, the principles of Alcoholics Anonymous. मैं बोलता हूँ कि मैं, 7 साल हुआ और मुझे, I got the opportunity to also be of service at the General Service Office of Alcoholics Anonymous as a delegate for 3 years. And I knew how it is to know and to practice these principles in all my life. The 12 steps for my personal recovery, the 12 traditions for the recovery of the group, and A as a whole, the 12 concepts. सब मुझे मालूम पड़ा कि यार अपने GSO के अंदर अपने क्या करते हैं. You see, we are talking about the 3 legacies of AA: recovery, unity, and service. So some people share, and I do believe that ये मुझे मजबूती देती है मेरी जीवन के अंदर. It is like a 3-legged stool. तो एक लेग निकल जाएगा तो यार मैं गिरने वाला हूँ. तो आई हैव टू बी in the beam of A through the 12 steps for my own personal recovery, to the 12 traditions for the recovery of the group and the unity of the group, and the service at the national level or AA as a whole. आज मैं बोलता हूँ कि such a wonderful program that I have got. तो मैं and in such a wonderful place that we have come and stayed with Mother Nature, that I always said that I believe in Mother Nature. I love photography. I had lost everything before I came to AA. आज मैंने इसको रिकवर किया. म्यूजिक सुनता हूँ, फोटोग्राफी. आई फोटोग्राफ बर्ड्स. वी बोथ लव बर्ड्स. और ये हमारे जो है जगह, ये बर्डिंग पैराडाइज है ना. वी नो अबाउट बर्ड्स. वी गो टू मेनी प्लेसेस. अभी हम लोग 1.5 महीने पहले मेरे वाइफ और हम लोग दोनों लेह लद्दाख पूरा 20 दिन घूम के आए. वहां पे वहां पे बर्डिंग की है हमने. एंड वी लव व्हाट वी आर डूइंग. साल में 20 in भीमताल, the first group in कुमाऊं. 7 मेंबर्स थे उस टाइम पे जब हमने मेंबर ये. और मुझे भाग्यशाली है कि यार, है ना, मुझे आसपास में काफी लोग जो है है सोबर रहने की तैयारी कर रहे हैं. तो हाउ आई कैन बी हेल्पफुल टू देम. And this is what the program has given me. I'll just read a small, a small prayer which my son wrote to me before I came to AA. You know, it is a letter, but I consider it as as a prayer. Don't you ever want me to sit next to you and talk to you? Don't you ever want me to respect you as my father? Don't you ever want me to appreciate what you do for us? Do you think I hate you? No, I don't. But I do hate the person you become after you drink. Yes, I hate you this. Not that I like doing that, just don't like to see you that way. I can't hate you. You're my father. And maybe I don't say it,
but I love you. And maybe you don't say it, but I know you love me too. It's 2 a.m. in the morning and I'm writing this letter to you. Ask yourself why. It doesn't mean you stop for a day or two and everything will be fine. It will take time. Don't do it for me. Do it for yourself. Try to keep what you have. Thanks for reading this letter. So this is what my son, this letter, Will you ये 2 more ये ये minutes? ये जो खत उन्होंने लिखी थी वो, यस आई बी फिनिशिंग, ये खत रेफ्रिजरेटर के ऊपर 3 महीने मैंने धूल खा रही थी, लेकिन ए में आने के बाद 3 महीने के बाद मैं ये लेटर को उठाया और डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ जो बोलता है कि साइकिक चेंज इज सफिशिएंट फॉर माय रिकवरी, ये मैं जब पढ़ा तो मुझे एक साइकिक चेंज हुआ, and together with that many other psychic changes have occurred in my life to bring me back to serenity, to bring me back to sanity. And I thank you all for allowing me to share this wonderful moment today. The Sunrise Welcome Group, to Saurav and all the members for having, listened to me patiently. Thank you and have a nice day. God bless you all.